Good morning, students. In our last lecture, we have done the cheese, and these are the two different varieties of the cheese. First one, the Swiss cheese, then Roquefort cheese. Swiss cheese that is prepared with fresh sweet milk, and temperature is 56 degrees centigrade, and starter bacteria is Thermophilus organism. The name of Thermophilus bacteria is Streptococcus thermophilus, and we can add the rennet also at this temperature, and some thermophilic lactobacilli and propionic acid bacteria can also be added. So Swiss cheese, its characteristic flavor, and it is prepared by the production of gas, and these gas produce holes in the cheese. So Swiss cheese is graded on the number of holes, their size, and whether or not inside is shiny. So the other form is the Roquefort cheese. Roquefort cheese is best known cheese like the cheddar cheese, and it is prepared by the sheep milk, and the surface of this cheese have a greenish blue mottling. This greenish blue mottling is due to the presence of mold. What is the name of mold? Penicillium roqueforti. That's why this is known as Roquefort cheese. So it is found that the characteristic aroma and flavor of Roquefort cheese is due to the production of the compound. The name of that compound is methyl amyl ketone, that is from the milk fat. So the superiority of the sheep milk is the making the blue cheese. Blue cheese is known as the Roquefort cheese, and that the fat globules are much smaller than those of the cow's milk. That's why we will prefer the sheep's milk. And the globules in milk of a definite fat content, the greater the opportunity for the fat to be attacked by the mold enzymes. So these mold enzymes, what is the mold? Penicillium roqueforti convert the fat into a very specific aroma and flavor, and production of one compound, that is methyl amyl ketone. So this is the Roquefort cheese. And on the base of fat content, cheese is divided into two categories: high fat cheese and the low fat cheese. High fat cheese curd with additional cream, so as to reach fat content is 60% even above, and low fat cheese curd without additional cream, so this is resulting from fat content that is less than 60%. So this is the types of the cheese. So the physical state of the structure based cheese, that is on the basis of physical state of the structure, the cheese is divided into three categories: soft cheese, semi hard cheese, and the hard cheese. What is soft cheese? Soft, the category of cheese which is ripened and unripened types, that include the three subtypes. Number one, unripened cheese. Unripened cheese में cottage cheese, Gorgonzola cheese, and Stilton cheese. And bacterial ripened cheese is the Lamberberg cheese, and mold ripened cheese is the Camembert cheese and the Brie cheese. And second one is the semi hard, means this is not hard, this is not soft, in between soft and hard cheese, that is semi hard cheese. So this category of cheese which is neither soft nor hard, so the ripening is done by both bacteria and molds. The different types and subtypes of semi hard cheese is mold ripened cheese है, Gorgonzola cheese, Roquefort cheese, and Stilton cheese. And bacterial ripened cheese is the brick cheese and Munster cheese. And hard cheese is the, that is, this is consistency is hard, texture is hard. So this is bacterial ripened only, not mold. So there are further cheese with the gas holes, that is Swiss cheese and Parmesan cheese, and cheese without gas holes is the cheddar cheese and the Edam cheese. This is the hard cheese. So we are doing the milk and milk products, and we will do today the yogurt. Yogurt is in your syllabus.
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योगर्ट? योगर्ट है क्या? अगर आपने मार्केट में योगर्ट देखा होगा, नाउ डेज इट इज़ अवेलेबल। एंड योगर्ट में जैसे आप दही में फ्रूट, ठीक है, जो दही है उसको हमने जो मिल्क दही बनाना है, वो जो मिल्क में हमने क्या करना है, फ्रूट पीसीस को डालना है, फ्रूट जूस को डाल के उसको फर्मेंट करना है, दैट इज़ द योगर्ट। क्यों हमने दही की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, एनहांस करना है, क्योंकि दही इज़ ऑलवेज इटसेल्फ इज़ अ फर्मेंटेड फूड, बट इफ़ यू ऐड द fruit in it, it will enhance its nutritional value. So we can say yogurt is oldest fermented milk product. So it is not a new item in the market, but this is people of Middle East were aware of what is yogurt, and this is quick curdled, and there is no production of alcohol, and fermented milk is also known as Liban in Egypt, Libni in Syria, Dahdi in India, and Mazun in Armenia. So in Europe countries there is lot of production in the started in the 20th century. How we can prepare traditionally yogurt at home? It is prepared by boiling milk for a considerable period of time to evaporate water and then concentrate the milk, and a similar effect is achieved by removing 1/4 or 1/3 of the water in a vacuum pan by adding 4 to 5% of dry skim milk solids to the whole milk, or by mixing appropriate quantity of whole or skim milk with ordinary condensed milk. ठीक है, अगर हमने क्या है, हमारा पर्पस क्या है, जो दूध है उसको कंडेंस करना है, या उसको वाटर को वेपोरेट करना है, या तो हम बॉयल करके वाटर को वेपोरेट कर लें, या फिर हम उसमें स्किम मिल्क डाल दें, जैसे ऑर्डिनरी कंडेंस्ड मिल्क है या ड्राई पाउडर है, उसमें डालकर उसको हमने क्या करना है, थिक कर लेना है। इन सम कंट्रीज द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम दीज कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क प्रेपरेशन इज कॉल्ड द बल्गेरियन योगर्ट भी बोलते हैं। सो ये जो बल्गेरियन योगर्ट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिल्क योगर्ट। तो योगर्ट जो है इसकी जो थोड़ी कंसिस्टेंसी जो होती है दैट इज़ हैवी, एंड इट इज़ सिमिलर टू कस्टर्ड। यू कैन इमेजिन कि जैसे हमने कस्टर्ड बनाते हैं उसमें कस्टर्ड पाउडर डालते हैं, तो मिल्क को बॉयल करके, तो जो मिल्क है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। तो द आइडली द कर्ड इज स्मूथ एंड फर्म, सो इन एडिशन टू विच एसिड योगर्ट इज सेड टू हैव नट लाइक फ्लेवर एंड टिपिकल योगर्ट अरोमा। योगर्ट की एक टिपिकल अरोमा होती हैं। तो यहाँ पे वी हैव टू से ट्रेडिशनली योगर्ट बनाने में भी हमने क्या करना है, वो जो जिसमें हमने स्किम्ड मिल्क डाला है या फिर कंडेंस्ड मिल्क डाला है, उस कंडेंस्ड मिल्क में जैसे कस्टर्ड की एक आजकल फ्लेवर आ रही है, यू कैन सी कस्टर्ड इन मैंगो, यू कैन से कस्टर्ड इन कस्टर्ड के डिफरेंट फ्लेवर्स में, जैसे मैंगो फ्लेवर्स हैं या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है या जो वनीला फ्लेवर है, ठीक है, दिस इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये जो फ्लेवर्स हैं हम इसमें क्या है, फ्लेवर डाली हुई हैं, लेकिन जो हमने ट्रेडिशनली योगर्ट बनाना है तो उसमें हमने फ्लेवर नहीं डालनी, आर्टिफिशियल जो मार्केट की फ्लेवर्स नहीं डालनी। इसमें हमने क्या करना है, इसको फ्रूट को काट कर उसके पीसीस और फ्रूट डालना है, फ्रूट के पीसीस और उसका जूस डालना है। देन इज़ द कमर्शियल हमने प्रोडक्शन कैसे करनी है। कमर्शियली हमने क्या कैसे बनाना है, फर्स्ट स्टेप इज़ कि गुड क्वालिटी मिल्क इज़ हीटर टू रिड्यूस इट्स माइक्रोबियल कंटेंट एज वेल एज टू इम्प्रूव इट्स जनरली फॉर ग्रोथ ऑफ द योगर्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने पहले मिल्क को क्या करना है, उसको बॉयल कर देना है। बॉयल करने के बाद उसमें इतना उसको बॉयल करना है कि उसके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो
किल हो जाए। तो सेकंड स्टेप है, हमने हीट ट्रीटमेंट दे दिया, इसको हीट में ट्रीटमेंट देने के बाद मिल्क को हमने कूल करना है। हीट जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर 100 है, 100 से हमने इसको कितनी डिग्री पे लेके ना 48 डिग्री पे, 48 डिग्री जब मिल्क कूल हो जाएगा, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको इनोकुलेट करना है 2 to 3% ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। माइक्रोबियल कल्चर से हमने इनको क्या किया, इनोकुलेट कर दिया। माइक्रोबियल कल्चर कितना होना चाहिए, 2 से 3%। सो नेक्स्ट स्टेप इज, हमने जो इनोकुलम है मिक्सड वेल विद मिल्क, उसको हमने मिल्क के साथ मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सचर जो है उसको हमने मिक्सिंग करके किस में डिस्पेंस कर देना है, कंटेनर्स में। कंटेनर्स क्या होते हैं, मोस्टली जार्स होते हैं या कार्टन्स होते हैं। तो इन जार्स को या कार्टन्स को हमने क्या करना है, 45 डिग्री पे अगेन इंक्यूबेट करना है। ठीक है, अगेन इंक्यूबेट करने के बाद जो उसका टेस्ट है दैट इज़ डिपेंड अपॉन द एसिडिटी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उसके बाद जो एसिडिटी टाइट्रेबल कंटेंट होना चाहिए 0.85 to 0.9% होना चाहिए। तो इस एसिडिटी कंटेंट को जो हमने अगर अचीव करना है, तो प्रोड्यूसर्स रिमूव द yogurt फ्रॉम द इंक्यूबेटर व्हेन द एसिडिटी रीचेज 0.65 to 0.70%। इससे ज़्यादा हमने एसिडिटी इन्हांस नहीं होनी देनी और इससे कम भी नहीं होनी। सो जो एसिड फॉर्मेशन से जब ये वाला लेवल हमारा एसिडिटी का आएगा, तो हमने क्या करना है, उसको कूल करना है। कूल करने के बाद जो हमने एक एक्टिव माइक्रोबियल कल्चर रिक्वायर है, उसको हमने ओनली 2.5 से 3.5 आवर्स टू प्रोड्यूस था। इसमें यह है कि जो हमने इसमें एसिड प्रोड्यूस करने में जो भी हमने माइक्रोबियल कल्चर डाला है, उसको 2.5 से 3.5 घंटे लगते हैं एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए। सो अब जो एसिडिटी इस लेवल पे आ गई है, तो उसके बाद योगर्ट जो है वो बन गया, उसको हमने कूल करना है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे 5 डिग्री पे एंड हेल्ड इट्स दिस टेम्परेचर अनटिल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर। ठीक है, उसको हमने बाहर नहीं रख सकते एंड अंडर दीज कंडीशन द प्रोडक्ट कैन केप्ट सेटिस्फैक्ट्री फॉर 1 to 2 वीक्स। ये जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसको हम रेफ्रिजरेटर में या 5 डिग्री टेम्परेचर से 1 से 2 वीक ही रख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एंड देन इज़ द व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपने जो एसिडिटी जो इन्हांस करनी है, उसको योगर्ट बनाने के लिए हमने योगर्ट पहले हमने मिल्क को किल किया, उसके अंदर उसके खुद के जो बैक्टीरिया या कंटेमिनेंट है उनको हमने किल कर दिया। उसके बाद हमने इनोकुलेट किया है योगर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये योगर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कौन से हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। सो ये योगर्ट प्रेपरेशन में 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, इनको दोनों में बराबर क्वांटिटी में लेना है, अदरवाइज़ जो फ्लेवर होएगा, जो ऑर्डर होएगा, जो कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं आ पाएगी किसकी, इसकी योगर्ट की। सो अच्छी फ्लेवर के लिए, अच्छी ऑर्डर के लिए, अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए दोनों कल्चर, कौन सा कल्चर, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस को हमने इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। उसके बाद when the mixture of the yogurt microorganisms is inoculated into milk, जब हम मिल्क में उसको डालेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रो होना शुरू हो जाएगी और ये बहुत फास्टली ग्रो करती है एंड लैक्टोबैसिलाई भी ग्रो करना शुरू हो जाएगी। तो within 3 or 4 or to 1 and the end of the first of incubation at 45 डिग्री क्या होएगा, जो है ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड से विद इन 3 to 4 आवर्स। सो द इनिशियल एसिड प्रोडक्शन इज़ ड्यू टू लार्जली ड्यू द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। जो थर्मोफिलस की एक्टिविटीज से पहली जो है एसिड प्रोडक्शन होएगी एंड ग्रेजुअली जो लैक्टोबैसिलाई है इंक्रीज इन नंबर अंटिल एट द एंड ऑफ इंक्यूबेशन। तो वो क्या करेगी, फर्दर जो एसिडिटी है उसको एनहांस करेगी। सो एसिड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अकम्पलिश्ड बाय लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, दोनों ने जो है, एक ने पहले एसिड प्रोड्यूस कर देना है, किसने, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ने, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस ने बाद में जो है प्रोड्यूस करना है। सो इन द माइक्रोबियल कल्चर ऑफ योगर्ट द फंक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस इज नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड बट इट रिप्रोड्यूस एंड ग्रो मोर रैपिडली दैन द लैक्टोबैसिकल बुल्गारिकस। इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ज़्यादा
फास्ट ग्रो करता है तो इसलिए एसिड भी फास्ट ही बनाता है, लेकिन लैक्टोबैसिलस स्लो है तो बाद में ये जब ये कंप्लीट कर देता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टुलस थर्मोफिलस, तो बुल्गारिकस जो है वो बाद में स्टार्ट करते हैं एसिड बनाना। सो लैक्टोबैसिलस जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उससे जो एसिड बनेगा उससे फ्लेवर बनेगी, अरोमा आएगी और उसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जो है योगर्ट अरोमा मोस्ट ऑफ द फ्लेवर जो है उसमें लैक्टोबैसिलाई से भी आती है। तो जो थर्मोफिलस है ये इम्प्रूव करता है बॉडी ऑफ योगर्ट बाय रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी characteristics of the milk culture of Lactobacillus bulgaricus, and जो Streptococcus thermophilus है it is necessary for the production of good quality yogurt. So function of Lactobacillus bulgaricus is better understood than that of the Streptococcus thermophilus. So these are the main two microorganisms that take part in the production of the yogurt. What are those microorganisms? Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. Then is the yogurt starter culture. What is starter culture? Starter culture जैसे आप दही बना रहे हो तो दही में जो स्टार्टर करते हैं ना, जो दही में आप जाग लगा रहे हो या जामन लगा देते हो जिसको आप बोल रहे हो, उसको हम बोलते हैं इनोकुलेटिंग कल्चर बोलते हैं, या इसको हम स्टार्टर कल्चर भी बोलते हैं। बट इस योगर्ट का स्टार्टर कल्चर क्या हुआ? ये दोनों बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस दोनों ही क्या करते हैं, स्टार्टर कल्चर की तरह हेल्प करते हैं। कैरी देम सेपरेट एंड मिक्स द टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल योगर्ट स्टार्टर कल्चर, और द सेपरेट प्योर culture can be obtained either from the stock culture collection or isolation them by the good yogurt culture। जैसे हम दही बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दही से जो स्टॉक कल्चर है, स्टॉक है जो पहले स्टॉक किया दही है उससे थोड़ा सा दही हम लेते हैं, दैट इज़ द स्टॉक कल्चर कलेक्शन। सो कमर्शियल योगर्ट स्टार्टर कल्चर जो है सप्लाइड एज मिक्सचर ऑफ द डिज़ायर्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये बना बनाया भी आता है, यहाँ हम इनको लैब में भी स्टार्टर कल्चर को बना सकते हैं। तो अब क्या है, योगर्ट का हमने स्टार्टर कल्चर जो है बना लिया है। तो योगर्ट जो है, जो प्रोड्यूसर्स है टू ऑब्टेन न्यू स्टार्टर कल्चर ईच वीक और टू रादर देन अटेम्प्ट टू कैरी द कल्चर इन द डेयरी प्लांट एंड रन द रिस्क ऑफ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टार्टर कल्चर। पर स्टार्टर कल्चर को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं किया जाता, उसको हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं कि नया कल्चर जो है प्रोड्यूसर जो है उसको नया कल्चर ले आता है, तो उसको जो है बार बार वो सब कल्चरिंग नहीं करता, ना हो उसको डेयरी प्लांट में पड़ा रहने देता है, क्योंकि उसमें जो स्टार्टर में चेंजेस आ सकती हैं, और अगर चेंजेस आ जाएंगी तो एसिडिटी की जो कंटेंट है वो नहीं दे पाएगा। रेशो, इस रेशो में 1:1 रेशो जो हमने लेनी है, तो इसलिए हमने फ्रेश ही स्टार्टर कल्चर लेना है। आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू व्हाट इज़ द स्टार्टर कल्चर। तो उसके बाद है डिफेक्ट्स दैट क्रीप्स इन योगर्ट। जैसे हमने कमर्शियली इसको बनाया है तो उसके में योगर्ट में कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट जो है उसको क्रीप्स इन द योगर्ट इन द एब्सेंस ऑफ टिपिकल योगर्ट फ्लेवर एंड अरोमा। इसमें जो एक इसकी पर्टिकुलर फ्लेवर या अरोमा अगर नहीं डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रीप्स इन योगर्ट। सो डिज़ायर्ड बैलेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई या लैक्टोबैसिलाई अगर 1:1 रेशन में हम नहीं ले रहे हैं तो फ्लेवर और अरोमा नहीं अच्छी तरह से प्रोड्यूस होगा। सेकेंड इज़ द वीक कर्ड फॉर्मेशन। अगर दही अच्छा नहीं बना है तो इट इज़ ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम इन द योगर्ट फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, एंड वीक कर्ड is most likely to result if the solid content of the milk is low। अगर फैट है, फैट कम है मिल्क में तो दही अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। सो if the significant amount of milk is from cows early in the lactation cycle, some cows give milk that inherited from a weak curd, so firmness of the curd from weak curd मिल्क में भी इंक्रीज बाय एडिंग 1 और 2% ऑफ ड्राई मिल्क। अगर उसको थोड़ा हम सॉलिड उसमें जो ड्राई पाउडर मिला दें या ड्राई मिल्क उस सॉलिड उसमें मिला दें 1 से 2%, तो उसको होमोजनाइज हम कर दें तो उसकी ये वाली प्रॉब्लम जो है वीक कर्ड की सॉल्व हो सकती है। तो उसको हमने मिल्क एट अबाउट 54 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर कितना है 3000 पाउंड पे पर स्क्वायर इंच पे
हमने रखना है बिफोर इनोकुलेशन। सो एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनेट ऑल्सो इंक्रीज द फर्मनेस। अगर अच्छा दही आपने बनाना है तो हमने लास्ट जब उसमें किया था कोएगुलम फॉर्मेशन में कि हम रेनेट भी डाल के उसमें बना सकते हैं। तो कई बार बिटर फ्लेवर भी इसमें आ जाती है योगर्ट में। बिटर मतलब खट्टा, सॉरी कौड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो उसके अंदर जो है, जो अगर लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस है, ये इसकी वजह से भी कई बार बिटर टेस्ट हो जाता है। कई बार जो है स्लो एसिड फॉर्मेशन होती है योगर्ट में। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियोफाज अटैक टू द सेल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। बैक्टीरियोफाज क्या है? वो वाला वायरस जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो वो किसको किल करता है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल को किल करता है। सो फाज रेजिस्टेंट कल्चर भी होना चाहिए। अगर फाज वहाँ पे है तो उसने क्या है, बैक्टीरिया को किल कर देना है, फिर उसकी वजह से एसिड फॉर्मेशन नहीं होनी या एसिड फॉर्मेशन स्लो होनी है, तो जो योगर्ट की क्वांटिटी है वो अच्छी नहीं आएगी। सो दीज आर द what is yogurt, and in this lecture we have completed what is yogurt and how to produce yogurt traditionally and commercially, and what can be the defects while preparation of the yogurt. So if I'll summarize the whole lecture in a few lines, what I'll say, the yogurt is a sort of dahi that contain the fruits. I think this is not written over there in this notes, but please add that this is containing the fruits also. And traditionally we make the yogurt by condensing the milk. If good quality of fat is present, curd will be good, also good quality, and it will give a good result in the formation of yogurt. उसको हमने कंडेंस करना है। कंडेंस करके हमने जो है इसको बैक्टीरिया नॉकुलेट करके योगर्ट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया नॉकुलेट करके हमने उसको प्रोड्यूस करना है, योगर्ट को प्रोड्यूस करना है। ये दही ही है, दही फर्मेंटेड ही होता है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो हमने एनहांस करनी है, तो उसमें हमने फ्रूट्स डाल देने हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन में टेम्परेचर आपको याद करने हैं। एसिडिटी कंटेंट 0.85 से 0.90% हमने लेके आना है। वो एसिडिक कंटेंट किससे आएगा? वो एसिडिक कंटेंट जो आएगा वो आएगा माइक्रोऑर्गेनिज्म से। कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म है? इसमें सिर्फ 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। ये दोनों का काम क्या है? एसिडिटी को इस लेवल पे 0.85 से 9.90% लेके आना है। तो जो बुल्गारिकस, ये थर्मोफिलस है, ये फास्ट ग्रोइंग है, तो ये पहले एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस जो है ये स्लो ग्रोअर है, ये बाद में प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये लेवल जो है मेंटेन करता है। उसके बाद योगर्ट स्टार्टर कल्चर है। इन्हीं बैक्टीरिया को हम स्टार्टर कल्चर करते हैं, स्टार्टर कल्चर कहते हैं, जिसको जमन या याग कहते हैं आप। और ये जो स्टार्टर कल्चर होता है बेसिकली इन दोनों बैक्टीरिया को हमने रेशो क्या लेनी है? 1:1 लेनी है। अगर 1:1 नहीं होगी तो जो हमारा योगर्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, वो ठीक नहीं होगी। और इसमें जो डिफेक्ट्स हैं उसको हम डिफेक्ट्स दैट क्रीप्स इन योगर्ट, उसमें मेनली जो डिफेक्ट आता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो योगर्ट की फ्लेवर ही नहीं बनती, उसका अरोमा ही नहीं बनता। क्यों फ्लेवर और अरोमा नहीं बनता? क्योंकि इसमें जो ये जो 1:1 रेशो है स्टार्टर कल्चर की, वो मेंटेन नहीं हो पाती और उसका एसिड कंटेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता, तो इसलिए ना फ्लेवर आती है और ना ही अरोमा आता है। फिर दूसरा रीज़न ये है कि जो कर्ड है वो वीक कर्ड है। वीक कर्ड को मतलब है कि क्यों बनता है वीक कर्ड? क्योंकि जो हमने मिल्क यूज़ किया उसका फैट कंटेंट अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से वीक कर्ड बना है। वीक कर्ड की इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व अगर हम कर सकते हैं, इसमें हम क्या है कि अगर हम इसमें स्किम्ड पाउडर या ड्राई मिल्क सॉलिड इसमें डालते हैं, उसको हम होमोजेनाइज कर देते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव कर लेते हैं 3000 पाउंड के ऊपर। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है, नॉट ऑटोक्लेव, सॉरी, 554 डिग्री पे अगर इसको हम स्टरलाइज कर लेते हैं होमोजेनाइज़र को, तो ये जो है मिक्स हो जाएगा प्रॉपर सॉलिड इसमें, तो ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद विटर टेस्ट हो जाता है। विटर टेस्ट कई बार लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस भी हो सकता है, ये भी एक डिफेक्ट है। या फिर जो एसिड प्रोडक्शन है बहुत स्लो होती है,
तो उससे भी प्रॉपर फ्लेवर्स नहीं आती। स्लो क्यों होती है कि जो हमने उसके अंदर बैक्टीरिया डाला है उसको बैक्टीरियोफाज खा जाता है। बैक्टीरियोफाज मतलब वो वाला वायरस जो कि बैक्टीरिया को खाता है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर विद यू व्हाट इज़ योगर्ट। नाउ प्लीज़ write down these main points and also prepared a flow diagram in your fair notebooks and share with me on my mail id. Thank you.